मानसिक परेशानी कभी कभी इंसान को इतनी तकलीफ पहुंचाने लगती है कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है और वह इस दुनिया को छोड़ने का सहारा लेने के बारे में सोचने लगता है। ऐसी ही एक वाकया रानीगंज के 91 नंबर वार्ड में पेश आया, जब रानीगंज के गिरजापाड़ा निवासी करीब 70 वर्षीय माला बराट ने शुक्रवार को अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। माला बराट जमीन खरीद बिक्री का कारोबार किया करते थे। वह जमीन के ब्रोकर थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर वो अपने घर के 2 तल्ला स्थित अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले लिए। उनके पुत्र सुमन बराट का कहना है कि उनके पिता जमीन के ब्रोकर थे, मगर पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक परेशानियों से गुजर रहे थे, जिससे तकरीबन डिप्रेशन में ही वे चले गए थे। माला बराट के परिजनों व स्थानीय निवासियों का कहना है कि शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। रानीगंज पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले ली। কিরকম মানসিকতা হয়েছিল? কিছু ডিপ্রেশনে ছিল, মানে কিছু কারণ শেয়ার করতো না। তাহলে এমন কি অসুবিধা হয়েছিল যে বাধ্য হলো সুসাইড করতে? এবার শেয়ার না করলে কিছু প্রপার্টি কিনেছিলাম, লস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইটুকুই জানি। আপনি কে? এই লাশটা নিয়ে গেল, বাস সেটাই করেছে। ওনার ভাই বলছি। ওনার ভাই, আপনি ওনার ভাই কিভাবে সুসাইড করলো বা কেন বা করলো না সেটা আমি বলতে পারবো না। বাস আমি এখানে থাকি না। যে কি নাম ছিল আপনার ভাই? মালা বরাট, নন্দলাল বরাট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के रेतुरिया में निजी फैक्ट्री में भट्टे में विस्फोटक के क्षेत्र में हलचल मच गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुक्रवार की दोपहर को फैक्ट्री परिसर व आसपास के क्षेत्र में जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण फैक्ट्री के कर्मचारियों के परिजन फैक्ट्री गेट के सामने जमा हो गए। आरोप है कि उन्हें फैक्ट्री में घुसने से रोका गया। काफी हंगामा हुआ घटना को लेकर। वही घटना की खबर मिलते ही कोकोवेन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की सूचना मिलने पर पार्षद व प्रखंड संख्या तृणमूल 3 कार्यकर्ता के संघ अध्यक्ष कल्लोल बैनर्जी भी मौके पर पहुंचे। হ্যাঁ বলছি ভিতরে কি হয়েছিল? বলছি আর কেউ আছে, অসুস্থ আছে আর কেউ? কি জেনেছেন আপনারা? কারণটা কি? কি হয়েছে? আমাদের ছেলে পুলে এসব ভাই বোনরা আছে, ওরা ওখানে ভাটি বাস্ট হয়েছে, দেখতে দিচ্ছে না। কেন দেখতে দিচ্ছে না আমাদেরকে? তাহলে কি শুনেছেন আপনারা? কি শুনেছেন? ভাটি বাস্ট হয়েছে, হ্যাঁ। আপনাদের লোকরাও আছে? হ্যাঁ, আমার ভাইরা আছে। তো কিছু বলছেন ওরা? কথা বলছে না, গেটের বাইরে কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই। গেটের বাইরে কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই, কিছু হয়নি। ম্যানেজমেন্ট গেটের বাইরে কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই। কোন পুলিশ আছে আমরা জানা লাভ নেই। কি শুনেছেন? একটু দাঁড়াবে। কি শুনেছেন? হ্যাঁ, আমরা একটা জিনিস জানতে চাই, ভিতরে কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা দেখতে চাই। ভাটি বাস্ট হয়েছে? না না, 4-4 ভাটি বাস্ট হয়েছে। আমরা দেখতে চাই কি হয়েছে। মানে গ্রাম পর্যন্ত কেটে গেছে, ঘর পর্যন্ত ঘরের এরা বলছে কি হয়নি। ফোনে পাচ্ছি না। কি আওয়াজ পেয়েছিলেন? ভাটি বাস্ট যেমন বড় একটা মানে বোম বাস্ট হয় না, এমন আওয়াজ যে আমাদের বাড়ির মধ্যে কানে তালা পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, পরপর 4 বার। বাড়ির কেউ কাজ করে এখানে? আমার ভাই কাজ করে পাশে আমাদের বাড়ি। হ্যাঁ, পাশাপাশি বাড়ির লোকেরা এখানে সবই কাজ করে। আপনারা কি আতঙ্কিত হয়ে গেছেন? হ্যাঁ, আতঙ্কিত তো বটে। এর আগের বারও হয়েছিল, আমরা দেখতে হবে তো। এর আগের বারও হয়েছিল এই ঘটনা। হ্যাঁ, তখন কিন্তু এসে ডাম্পারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন এসে আমরা ব্লাড রক্ত এই সমস্তগুলো পেয়েছিলাম, মাংসের টুকরো দেখতে পেয়েছিলাম। এইবারে কিন্তু সেটাও পাচ্ছে না, ঢুকতে দিচ্ছে না। কোনো খবর পাচ্ছেন ভিতরে? হতে কেউ হয়েছে কিছু খবর? না, কোনো খবর নেই। খালি বাড়িটাকে তোমরা প্রেস, তোমরা কি নাম তোমার? কি নাম? আমার নাম হচ্ছে নবমণ্ডল, আনন্দ ক্যাম্প। বলছি কি শুনে গিয়েছিলেন ভিতরে? আমি বাইরে ছিলাম, দুম করে আওয়াজ হলো, দিয়ে আমি ঢুকলাম, উঠে মানে পুরো ঘুরলাম আমি ভিতরটায়, যে কারোর কোনো ইনজোর্ড হয়েছে নাকি। ইনজোর্ড হলে আমরা লোকাল ছিল, আমরা এগুলো হসপিটাল করি, ঠিক আছে, যে কোনো অসুবিধা হয়নি। কতজন আহত রয়েছে? আহত হয়নি।
তো এই অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে একজন দৌড়ার দিকে পড়ে গেছে, ওর হাট ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছে। তো এত বড় ভাটি ব্লাস্ট কেউ আহত হলো না? না না, ওরা বুঝতে পেরে গেছে বাস্ট হয়ে যাবে, সব সাইড নিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল, ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল। আপনার নাম? রকম ব্যাপারই। আপনি কোন ইউনিয়নে? টিএমসি। ভাটি বাস্ট হয়েছিল, যেটা আমরা খবর পেয়েছি। ভাটি বাস্ট হয়েছিল, তাতে কেউ হতাহত হয়নি, একজনই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাকে এখন হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। খুব বেশি কোনো ক্ষতি হয়নি। মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে এবং তারা অবশ্যই এইরকম একটা ঘটনা ঘটলে তো মানুষের মধ্যে এই পুজোর মরশুমে একটা আতঙ্ক ছড়াবে। তো সবাইকে বলবো যে কোনো প্রবলেম নেই, কোনো অসুবিধা নেই, সব কিছু ঠিক আছে। একজনই মাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। এমন কিছু ক্ষতি হয়নি কারো কিছু, সব কিছু ঠিক আছে। আমরা যেখানে আমি জেলা সভাপতিকে পুরো বিষয়টা জানিয়েছি এবং জেলা সভাপতি আমাদের দল পুরো বিষয়টার ওপর এবং পুলিশ প্রশাসন সাথে সমস্ত বিষয়টার ওপর নজর রাখছে। প্রতিবেদনের ব্যাপারে কিছু কথা হয়েছে যে না, ওনার যা ট্রিটমেন্ট আছে পুরো খরচা কোম্পানি বহন করবে। স্থানীয়দের দাবি ঘটনা হলো, হয়তো কিছু প্রশাসনিক ব্যাপার আছে, সেভাবেও সেটা আমরা ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু সেরকম তার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমরা ছেলেটার সাথে কথা বলেছি, ছেলেটার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও নিয়েছি। ছেলেটার আমরা রীতিমতো ছেলেটা নাকের দুপাশে চোট পেয়েছে হালকা, আর মাথায় সামান্য লেগেছে। একজনই ছেলেটা কুরুলিয়া এখান থেকে। কি নাম? অমরনাথ। সেটার নাম অমরনাথ। যে সময় ব্লাস্টিং হয়েছে হ্যাঁ, সেই জায়গাটা কি মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা না, সেটা তো আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা কিছু বুঝতে পারবো না। ও ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এবং প্রশাসন তার প্ল্যান ইন্সপেক্টর যারা আছে, যাদের কাজ, তারা এসে পরে ব্যাপারটা ইনকোয়ারি করবেন, কি ব্যাপার না ব্যাপার ওনারা বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন। ওই বিষয়টা আমি বলতে পারবো। হ্যাঁ, না, এই টিফিন টাইম ছিল বলে ওরা ওখানে কেউ ছিল না, তারা সবাই বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেছিল। এই ছেলেটা যখন হয়েছে কোথায় ছিল? এই ছেলেটা ওই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেই বসেছিল, ম্যানেজমেন্টের কাছেই বসেছিল। ও না অ্যাক্সিডেন্টের সময় যে ওখানে ও আঘাত ম্যাচিং ম্যান ছিল, ছিল। ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोयरी में सेवानिवृत्त कर्मी व HMS के ईसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य और एरिया JCC के सदस्य विष्णुदेव नौनिया और महिला कर्मी दुर्गा दासी कौड़ा के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर दोनों को विदाई दी गई। दोनों आज ही के दिन अपने कर्म जीवन से विदा लिए। इस अवसर पर कोलियरी एजेंट समर दत्ता, प्रबंधक कमलेश कुमार, कर्मी प्रबंधक मलय दास गुप्ता, केएमसी नेता अजय चौधरी, लंडतू नौनिया, प्रताप कुमार, विजय अधिकारी, मनोज नौनिया, आनंदमय मुखर्जी और देवाशीष दास माला पहनाकर सम्मानित किए। एजेंट ने गुलदस्ता, शॉल ओढ़ाकर साथ ही उपहार भेंट किया। इस अवसर पर विष्णुदेव नौनिया के जीवनी और उनके योगदान पर एजेंट समर दत्ता, प्रबंधक कमलेश कुमार तथा उपस्थित अन्य अधिकारियों और नेताओं ने विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अमरजीत नौनिया, जितेंद्र नौनिया, महेश राम और मास्टर जी आदि मौजूद रहे। तो इनका हरदम कि अगर हमारा माइंड नहीं बदलेगा तो इज्जत नहीं जाएगा। खास कर इज्जत हम लोग को प्रोडक्शन से है, लेकिन तो हमारी प्रोडक्शन देखता है एक मैनेजर क्या उससे हमको आता है। तो उनको ये जो पॉजिटिव थिंग है, ये पॉजिटिव थिंग उसको सब चीज़ में देखा पड़ा। उनको जो भयानक परिस्थिति में कोरोना हो गया था, उनसे कोरोना से निकल के आया, उनको वही चेहरा है, वही सोच है, वही ये है, वही कभी नहीं है। उसका हार्ट में स्टेन बैठा हम लोग देखे हैं। इतना विषम परिस्थिति में मुझे निकाल के आए, उनको एक ही उसमें है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होने से आदमी कमज़ोर हो जाता है तुरंत। उपस्थित मैनेजर साहब, खासकर जो एग्जीक्यूटिव चौधरी जी, खासकर जो तमाम साथियों, आज का दिन जो दो व्यक्ति नौकरी से अवसर নিচ্ছে যারা দুর্গা দাস কোড়া আর নিরালাজি, দুজনকে প্রথমে আগামী জীবনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আপনারা দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। দুর্গা দাস কোড়া সম্বন্ধে ম্যানেজার সাহেব বললেন, আমিও দেখেছি ম্যানেজার যখন গেছি, ও খুবই উপস্থিত
मैनेजर साहब, खासकर एग्जीक्यूटिव में चौधरी जी, खासकर तमाम साथियों, आज का दिन जो दो व्यक्ति नौकरी से अवसर নিচ্ছে যারা দুর্গা দাসপুরা নিরালাজি দুজনকে প্রথমে আগামী জীবনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আপনারা দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। और जो बाकी जिंदगी है, जब तक मेरी जिंदगी रहेगा, हम इस कंपनी का जहाँ तक मेरी क्षमता होगा, मेरा ये होगा, हम कंपनी के साथ रहेंगे, मदद करेंगे। और जितने भी समाज है, वर्कर हैं, जितने भी साथी हैं, समाज है, साहब लोग हैं, सबसे मिल करके और एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ले जाने की कोशिश करेंगे। यही बोल करके आप सभी को धन्यवाद देकर सम्मान समारोह हमें ठीक लगेगा। इसलिए देखिए, हमारा दो भाई है और एक भागना है, हम जो डिसीजन लिए हैं, हम खासकर हम घर बनाएंगे, सब पूरा परिवार मेरा विरोध में है। लेकिन सच्चाई ये है, जो आप लोग स्पीच दिए, ये भुलाई नहीं जा सकता। हम आप लोगों के बगैर जीने ही नहीं सकते। हम डिटरमाइन डिसीजन है कि हम यहीं पर घर बनाएंगे। इसीलिए यहाँ के लोगों से इतने प्यार मोहब्बतें जज्बाते हैं, जिसका हम खुद तारीफ नहीं कर सकते। और जेहेतु राजनीति से जुड़े हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो प्रावधान है, हम सबको एक दिन रिटायरमेंट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आज के दिन इतना ही बोलूँगा, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन लीडरशिप भी तमाम है। एक चीज़ बोलेंगे, एजेंट साहब है, बड़ा साहब है, हमारा बड़े साहब है, नायक साहब, पात्र साहब, क्या सर प्रधान साहब है, बोलेंगे, ये एक रिक्वेस्ट करेंगे, सम्मान समारोह चाहे विदाई जो भी हो, जब भी करें तो कम से कम और जैसे मेंबर को प्लीज़ मेरा एक अनुरोध बोले, जो भी है करें, थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक तो चीज़ बोलेंगे, सभी ट्रेड यूनियन जितने भी यहाँ पर साथी हैं, हम कंपनी के प्रति वफादार होना चाहिए। कंपनी को हम रक्षा नहीं करने पाएंगे, न कोई ट्रेड यूनियन रहेगा, न वर्कर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हमेशा लड़ाई होता है। हमको बराबर एजेंट साहब खड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा रखता नहीं है, एजेंट साहब से कभी कभी गुस्सा लेते हैं, कहीं किसी से गुस्सा लेते हैं, अलग बात है। लेकिन कंपनी को जहाँ रक्षा का सवाल आता है, कोई असुविधा का सवाल होता है, हमको जब से तजुर्बा है, हम मोटा मोटी 25-26 साल से खासकर एक छत्र चला दिए, लेकिन हमको 26 साल की ज़िंदगी में ये याद नहीं आ रहा है कि हम कभी भी प्रोडक्शन के एजेंट से गए होंगे। हमको आज तक ख्याल नहीं। बोलेंगे ढेर बोलना है, कभी बोलेंगे सुनाएंगे, हमारे पास उंगली पर गिना हुआ कुछ लोग आज नहीं है, चला गया। एक एक व्यक्ति करोड़ों रुपये कंपनी को नुकसान दिया होगा। यहाँ हम नाम उसका नोट डाउन करके रखे, लेकिन एक तो चीज़ है, उसको खासकर हम कुछ पानी देने वाला आदमी नहीं, ये भी बात है। उसको खासकर हमें सम्मान स्वरूप हमारे मुख्य अतिथि निराला जी और दुर्गा दासी कोड़ा एजेंट साहब और हमारे सहयोगी निराला जी के लिए विदाई पर्दा हटा नहीं करना चाहिए। निराला जी से कई बार बात हुआ और कई बार बोले हैं कि हम यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही रहेंगे। विदाई नहीं है, लेकिन जो हम लोग का सरकारी नियम है उसके हिसाब से 60 साल पूरा किए हैं, तो उसके हिसाब से जो ये समारोह हो रहा है, विदाई समारोह। और निराला जी के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो दिन भर भी कम है, और किसके सामने बोलेंगे, सब लोग तो जानते ही हैं। तो हम 2-3 बार खोलिए, उसको खोल दीजिए, ज़्यादा बोलेंगे, इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए। अभी अपने जो निराला जी का 2-3 नाम है, लेकिन एक चीज़ हम और बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भोले बाबा हैं, भोले बाबा जो इनके पास आ गया, जो वो वक्त खाली नहीं जाएगा। और जैसा इनका शरीर जितना बड़ा है, दिल उससे भी बड़ा है। और अभी तो निराली अनेक ये में पद में HMS के राज्य सेक्रेटरी भी है, लेकिन इनकी निष्ठा हमेशा खास कजोरा के प्रति है।
जैसे भीष्म पितामह की निष्ठा हमेशा अस्तिनापुर के प्रति था, तो इसलिए निराला जी का निष्ठा हमेशा खास खजुरा के प्रति खास खजुरा का भीष्म पितामह है। आज ये स्टेट सेक्रेटरी हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं और जिला परिषद हैं, एरिया JCC मेंबर हैं, लेकिन निष्ठा इनका हमेशा देखे हैं कि खास खजुरा के प्रति रहता है। और तो बोलने का अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा का उद्घाटन रंगारंग कार्यक्रम के साथ जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काट कर किया। इस दौरान स्थानीय गायकों ने मंच पर सुमधुर फिल्मी गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा 150 जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र बांटे गए। 2 चरणों में हुए इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, MIC दिव्येंदु भगत, शुभ्रतो अधिकारी, पार्षद रुपेश यादव, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया, स्थानीय पार्षद भोला कुमार हेला, मृदुल चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। इस दौरान प्रथम चरण के कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काटकर दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया और जरूरतमंद महिलाओं के बीच वस्त्र बांटे। दूसरे चरण में जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने भी फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर दुर्गा पूजा के पंडाल का उद्घाटन किया। विधानसभा चल रहा था, अभी 1 सप्ताह पहले मैं विधानसभा में था, दीदी का वक्तव्य हुआ। दीदी ने कहा कि अपने लिए तो आप सभी करते हो, आप लोग MLA हो, अपने परिवार के लिए कपड़ा खरीदे होंगे, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदे होंगे, और जो लोग सक्षम नहीं हैं, बंगाल में बहुत गरीबी है, तो जिसके पास ये साधन नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको भी मुख पर हंसी फुटाना होगा। दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ही बड़ा, और 4 दिन पूरा बंगाल हर घर में मां का आराधना होता है, और उन्हीं के कृपा से आज हम लोग यहाँ अच्छे ढंग से रह रहे हैं। लोग एक समय कहते थे यहाँ दुर्गा पूजा नहीं होता है, ममता बनर्जी नहीं करने देती हैं, परंतु दीदी ने दिखा दिया कि किस तरह पूजा किया जाता है और मां के प्रति कितना श्रद्धा और प्रेम हम लोगों को है, वो इस बार हम लोगों ने साबित किया। हर पूजा कमेटी को 60,000 रुपया करके हम लोगों ने दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। और आज हमारे विरोधी लोग कोर्ट में गए थे, ये पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, और कोर्ट के आदेश के बाद ये पैसा दिया गया है। हमारे काउंसलर भोला जी, बगल में हमारी नवनिर्माण के नेत्री लाली है, हमारे पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट पांडे जी हैं, और विशेष करके आप बहन भाई और मेरे परिवार के लोग। मुझे आने में विलंब हुआ, माताएं बहुत देर से बैठी हुई हैं, पूजा का माहौल है, सभी चाहते हैं कि एक बार विधायक जी आकर के फीता काटने तो अच्छा लगे, परंतु मुझे कई कार्यक्रम करने के बाद परवलिया जाना पड़ा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, और वहां थोड़ा देर हो गई। तब भी मैंने पांडे जी से कहा था कि पांडे जी 9 बजे के बाद ही हम पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। देखिए, साल का रिकॉर्ड तोड़ा और हम सबको अपना नेतृत्व दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जितने भी रिस्पेक्टेड
गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं, विशेष करके मोहरम सतग्राम में पांडे दा, सुषमा पांडे जी, उपेंद्र दा, उत्तम दा और बहुत लोग हैं। शायद नाम गिनाने में समय ज़्यादा चला जाए तो मैं बहुत ही कम समय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस मंच से कि आप सब ने जो ये कार्यक्रम आज माँ दुर्गा के शुभ अवसर पर आयोजित की है, ये सबसे सराहनीय बात है कि जब सभी लोग माँ दुर्गा के स्वागत के लिए नए नए वस्त्र पहन करके माँ दुर्गा की आराधना करने आते हैं। इस अवसर पर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने वो भाइयों को जिनको हम कुछ ऐसे वस्त्र दे सके जिसे पहन करके वो माँ दुर्गा की आराधना कर सके। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय विधायक साहब श्री हरवंश को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सीसूबका नॉर्थ जोन इलाके में दुर्गा पूजा के मद्देनजर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से समाज सेवी सौमित्र बनर्जी की पहल पर लगभग 450 असहाय महिलाओं में साड़ी वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से बोरोदो MIC दिव्येंदु भगत, चेंबर के सलाहकार RP खैतान, समाज सेवी राजीव बाजोड़िया, पूर्व पार्षद कांचन तिवारी और डॉक्टर शुभेंदु माझी एवं कई अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन से लोगों में काफी खुशी और उत्साह देखी गई। साड़ी पाई महिलाओं ने कार्यक्रम के आयोजन कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। বাদ দিয়ে আমরা যেন সবাইকে এক অভিন্ন দেখতে পারি। আগে দীপাবলি, কালী পূজা আছে, তারপরে আমরা সরস্বতী পূজা, সপ্তম সরস্বতী, গণেশ গজপতি, যারা স্মরণ করে, যারা কেয়ার করে আমাদের সমাজের যারা অবহেলিত অসহায় দুস্থ মানুষ, তারা সত্যি মহান। উৎসবের সময় বিশেষ করে যারা আমাদের মা বোনের বিষয়ে চিন্তা করে, সেই কাজটা, সেই লোকটি খুব মহৎ। তাই আজকে আমাদের এই শারদোৎসবের সময় আপনারা যারা সবাই মিলে এই যে আমাদের আর্ত মানুষ যারা সত্যি উপেক্ষিত, সমাজের তরফ থেকে তাদের বিষয়ে খুব কম চিন্তা করা হয়, তাদেরকে এই উৎসবের সময় মনে রাখাটা সত্যি আমি ওই যে চিন্তাধারা, তাকে আমি নমস্কার করি, প্রণাম। মায়েদের প্রতি যারা আজকে এখানে সমবেত হয়েছেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যে কোনো অনেক সময় দেখা যায় মহামারী দেখা দিচ্ছে বা অন্যরকম করোনা ছাড়াও বিভিন্ন রকম মহামারীতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গেছি এবং সেখানে 2-3 দিন ধরে থেকে আমরা কাজ করে গেছি, সারা রাত খাওয়া নিয়ে দেওয়া এমনভাবে আমরা কাজ করে গেছি। আমার একটা সময় ছিল যখন সমস্ত চেম্বার করোনা পেশেন্ট নিচ্ছিল না, তখন আমরা কিন্তু আমি জিতেন্দ্র ও একজনরা এমনকি এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা মানুষকে সাথে পাশে পেয়েছি, পাশে দাঁড়িয়েছি। সাথে সাথে আমরা আরো যারা আছেন তারাও আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, আমাদের সাংবাদিক মহাসহায়তা করেছেন। আপনারা আপনার ওনারা বলেছেন যে এই দান গুপ্ত দান, কারণ দান সেটাই হয় যেটা গুপ্তভাবে করা হয়, তাই ওনাদের নাম বলতে বারণ করা হয়েছে। ওনারা আমাদের যদি সাহায্য না করতেন তাহলে হয়তো আমরা এরকম আপনাদেরকে এই শারদীয়া পুজোর আগে পঞ্চমীর দিন আমরা হয়তো বস্ত্র দিতে পারতাম না। তো ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে এখানে সাহায্য করেছেন। যারা আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো RP খৈতান মহাশয়কে, যিনি তার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও উনি কষ্ট করে আমাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। কোনো সমাজসেবামূলক কাজ হয় উনি প্রত্যেকটা জায়গাতে পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। আমাদের সমস্যা হয়, যে কোনো গরিব দুঃস্থ মানুষের সমস্যা হয়, उन्हीं किंतु एक का सुने हमारे हेल्प करे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए हम लोग जिस तरह से जो सोच है हम लोग को अंदर, ये सोच पैदा कैसे हुआ हम लोग को अंदर,
जो माँ माटी मानुष की जो सरकार है, ये सरकार ऐसी एक सरकार है जो सरकार जो लोगों के लिए हर वक्त काम करता है और लोगों के लिए हर वक्त सोचता है। जो सोचने वाले सारा वस्त्र वितरणी अनुष्ठान किया, हम लोगों ने सोचते हैं समाज में ऐसा दुष्ट लोग हैं जिनको इतना बड़ा दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे सभी आज नए कपड़ा पहनते, नया जब कपड़ा पहनते, बहुत माँ बहन है जिन लोग को कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। इसके लिए हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से आज सब समय दुर्गा पूजा के लिए जो पंडालों पूजा मंडप में आज 60,000 रुपया करके देकर उत्साहित कर रहा। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस साल यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा दिए जाने के बाद राज्य में दुगने उत्साह और उमंग के साथ दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। हर वर्ष सल्पांचल में पूजा पंडालों का पट पंचमी को खोला जाता था, लेकिन इस बार चतुर्थी से ही पूजा पंडालों के पाट खुलने शुरू हो गए हैं। गुरुवार को राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक और आसनसोल के सांसद बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने संयुक्त रूप से बर्नपुर क्षेत्र के कई पूजा पंडालों का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें आसनसोल के राधानगर रोड एथलेटिक क्लब, रविंद्र नगर उन्नयन समिति, बर्नपुर के नेताजी स्पोर्टिंग क्लब आदि पंडाले शामिल हैं। इस दौरान उप मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, सुरजीत सिंह मक्कड़, पार्षद रियाज कहकशा, मौसमी बोस आदि मौजूद रहे। पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां हर साल लोगों की भीड़ षष्ठी तिथि से उमड़ती थी, वहीं इस साल दुगने उत्साह और उमंग के कारण चतुर्थी से ही लोगों की भीड़ पूजा दर्शन के लिए उमड़ती दिख रही है। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ऐसे तो मैं दुर्गा पूजा के दौरान कई बार पश्चिम बंगाल आया हूं, लेकिन इस वर्ष पूरे राज्य में दुर्गा पूजा की भव्यता अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। ফ্যান্টাস্টিক। আজকে তো শুভ পুজো সবাইকে জানাচ্ছি, আমি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। কিন্তু এইখানে এসে রবীন্দ্রনগরতে যেরকম আমি দেখেছি, আমি এইখানে অভিজিৎ ঘটক বাবু আমাকে নিয়ে এসেছেন এইখানে, অ্যান্ড আই এম সো গ্রেটফুল টু হিম। আর সঙ্গে সঙ্গে উনি ছিলেন মলয় বাবু, তপন বাবু, আমাকে এখানে যা দেখিয়েছেন অদ্ভুত। আজকে স্পেশালি ইউনেস্কো যে আমাকে ট্যাগ দিয়েছে আন্ডার দ্য গ্রেট লিডারশিপ অফ গ্রেট মমতা ব্যানার্জি, এরকম আজকে ট্যাগ হেরিটেজ নাম্বার 1 করে দিয়েছে দুর্গা পুজোকে। কিন্তু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বতে এরকম হচ্ছে, থেমস রিভারতে হচ্ছে, নিউ ইয়র্কে চলছে এরকম, আপনাকে ফিলিপিন অনেক কান্ট্রিতে হচ্ছে। দুর্গা পূজা তেওয়ার, দুর্গা পূজা যেরকম হচ্ছে আর আসানসোলে যেরকম দেখেছি আমি, অদ্ভুত। আমি আগেও কতবার এসেছি, কিন্তু এইরকম আমি কখনো দেখিনি। গড ব্লেস আর আসানসোল, আমার বাঙ্গাল অ্যান্ড জয় বাংলা, জয় হিন্দ। বাংলার সব থেকে বড় উৎসব, কিন্তু এই তো সবথেকে বড় উৎসব বাংলা পুজো, কিন্তু নাও অল ওভার ইন্ডিয়া, বিশ্বতে সেম যা হচ্ছে, যেরকম হচ্ছে। আমি তো বললাম অদ্ভুত। আমি কতবার এসেছি এখানে, কিন্তু যেরকম এইবার দেখেছি, আমি কলকাতায় ছিলাম অনেক দিন, অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম উৎসবে গিয়েছিলাম, এখন এসেছি এখানে, যা দেখছি আমি, ও সিইং ইজ বিলিভিং। গড ব্লেস অল অফ ইউ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এখানে আসানসোল হচ্ছে সিটি অফ ব্রাদারহুড, সব ভাইকে শিখতে হবে এইখানে। সিটি অফ ব্রাদারহুড, সেকুলারিজম সঙ্গে সর্বধর্ম সমভাব। এইখানে হিন্দু মুসলিম আমরা ঈদতে এসেছিলাম, এইখানে এসেছি দুর্গা পূজাতে, মা দুর্গাকে প্রণাম করতে। সেই রকমের क्रिसमस डे सब भाई के यही है कि सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा हो, सद्भावना हो, समाज में देश में सुख हो, शांति हो, बंगाल प्रगतिमय हो और देश हमारा तरक्कीमय हो। यही हमारी कामना है, शुभकामना माँ दुर्गा से। वहीं दूसरी ओर बर्नपुर के पुराना हाट स्थित नव विकास क्लब के पंडाल का उद्घाटन अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी
और रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमतामन महाराज ने किया और साथ ही पार्षद तपन बैनर्जी, डॉक्टर अरुणाभ सेन गुप्ता ने भी संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। जबकि शुक्रवार को भी आसनसोल के कई नामी पूजा कमेटियों के पंडाल के उद्घाटन में मंत्री मलय घटक ने पहुंचकर फीता काटकर उद्घाटन किया।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।